இளம் கிளையைப் போலவும் வறண்ட நிலத்தில் இருந்து துளிர்க்கிற வேரைப் போலவும் அவனுக்கு முன்பாக எழும்புகிறார். அவருக்கு அழகும் இல்லை, சௌந்தரியமும் இல்லை. அவரை பார்க்கும்போது நாம் அவரை விரும்பத்தக்கதாக ரூபம் அவருக்கு இல்லாதிருந்தது. அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டவரும் மனுஷரால் புறக்கணிக்கப்பட்டவரும் துக்கம் நிறைந்தவரும் பாடு அனுபவத்தோருமாய் இருந்தார். அவரை விட்டு நம்முடைய முகங்களை மறைத்து கொண்டோம். அவர் அசட்டை பண்ணப்பட்டிருந்தார், அவரை எண்ணாமற் போனோம். மெய்யாகவே அவர் நம்முடைய பாடுகளை ஏற்றுக்கொண்டு நம்முடைய துக்கங்களை சுமந்தார். நாமோ அவர் தேவனால் அடிபட்டு வாதிக்கப்பட்டு சிறுமைப்பட்டவர் என்று எண்ணினோம். நம்முடைய மீறுதல்கள் நிமித்தம் அவர் காயப்பட்டு நம்முடைய அக்கிரமங்கள் நிமித்தம் அவர் நொறுக்கப்பட்டார். நமக்கு சமாதானத்தை உண்டு பண்ணும் ஆக்கினை அவர் மேல் வந்தது. அவருடைய தழும்புகளால் குணமாகிறோம். நாம் எல்லாரும் ஆடுகளைப் போல வழி தப்பி திரிந்து அவனவன் தன் தன் வழியில் போனோம். கர்த்தரோ நம் எல்லாருடைய அக்கிரமத்தையும் அவர் மேல் விழப்பண்ணினார். அவர் நெருக்கப்பட்டும் ஒடுக்கப்பட்டும் இருந்தார், ஆனாலும் தம்முடைய வாயை அவர் திறக்கவில்லை. அடிக்கப்படும்படி கொண்டு போகப்படுகிற ஒரு ஆட்டுக்குட்டியைப் போலவும் தன்னை மயிர் கத்திரிக்கிறவனுக்கு முன்பாக சத்தமிடாதிருக்கிற ஆட்டைப் போலவும் அவர் தம்முடைய வாயை திறவாதிருந்தார். இடுக்கனிலும் நியாய தீர்ப்பினிலும் இருந்து அவர் எடுக்கப்பட்டார். அவருடைய வம்சத்தை யாரால் சொல்ல முடியும்? ஜீவனுள்ளோ தேசத்திலிருந்து அறுப்புண்டு போனார். என் ஜனத்தின் மீறுதல் நிமித்தம் அவர் பாதிக்கப்பட்டார். துன்மார்க்கரோடு அவருடைய பிரேத குழியை நியமித்தார்கள், ஆனாலும் அவர் மரித்த போது ஐஸ்வர்யவானோடு இருந்தார். அவர் கொடுமை செய்யவில்லை, அவர் வாயில் வஞ்சனை இருந்ததும் இல்லை. கர்த்தரோ அவரை நொறுக்க சித்தமாகி அவரை பாடுகளுக்குட்படுத்தினார். அவருடைய ஆத்மா தன்னை குற்ற நிவாரண பலியாக ஒப்பு கொடுக்கும் போது அவர் தமது சந்ததியை கண்டு நீடித்த நாளாயிருப்பார். கர்த்தருக்கு சித்தமானது அவர் கையினால் வாய்க்கும். அவர் தமது ஆத்ம வருத்தத்தின் பலனை கண்டு திருப்தியாவார். என் தாசனாகிய நீதிபரர் தம்மை பற்றும் அறிவினால் அநேகரின் நீதிமான்களாக்குவார். அவர்களுடைய அக்கிரமங்களை தாமே சுமந்து கொள்வார். அவர் தம்முடைய ஆத்மாவை மரணத்தில் நீற்றி அக்கிரமக்காரரில் ஒருவராக எண்ணப்பட்டு அநேகருடைய பாவத்தை தாமே சுமந்து அக்கிரமக்காரருக்காக வேண்டிக் கொண்டது நிமித்தம் அநேகரை அவருக்கு பங்காக கொடுப்பேன். பலவான்களை அவர் தமக்கு கொள்ளையாக பங்கிட்டுக் கொள்வார். आमीन। जो समाचार हमें दिया गया उसका किसने विश्वास किया और यहोवा का भुजबल किस पर प्रकट हुआ? क्योंकि वह उसके सामने अंगूर के समान और ऐसे जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकली। उसकी न तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते और न उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। वह दुखी पुरुष था, लोग उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसका मूल्य न जाना। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कोटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया और हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी। उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाए। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना मार्ग लिया और यहोवा ने सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे उसने भी अपना मुंह न खोला। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। उस समय के लोगों में से किसने उस पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया? मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। उसकी कब्र भी दुष्टों की संग ठहराई गई और मृत्यु के समय वह धनवान की संगी हुआ। यद्यपि उसने किसी प्रकार का उपद्रव न किया था और उसके मुंह से कभी छल की बात नहीं निकली थी, तो भी यहोवा को यही भाया कि उसे कुचले। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब वो अपना प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। वह बहुत दिन जीवित रहेगा। उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा।
अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को धर्मी ठहराएगा और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा। इस कारण मैं उसे महान लोगों के संग भाग दूंगा और वह सामर्थियों के संग लूट पाट लेगा, क्योंकि उसने अपना प्राण मृत्यु के लिए उड़ेल दिया। वह अपराधियों के संग गिना गया, तो भी उसने बहुतों के पाप का बोझ उठा लिया और अपराधियों के लिए विनती करता है। हम लोग बैठ सकते हैं। ये आने वाला अगस्त 15 सबका छुट्टी का दिन है। उस दिन हम लोग प्रभु भोज का आराधना रखेंगे। शाम को 5:30 से 7 बजे तक होगा। लिख लीजिएगा, अगस्त 15 शाम को 5:30 बजे से 7 बजे तक होगा प्रभु भोज। सब लोग तैयारी के साथ। प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे। पिछले हफ्ता भर परमेश्वर ने आप सब लोगों को अपने आंखों की पुतली की मानंद संभाल कर आज उसके भवन में लेकर आए। हालेलुया, हालेलुया। शास्त्र लेख में से अभी हमने पढ़े थे यशायाह नबी का किताब, उसमें 53वां अध्याय को पूरा हमने पढ़ा। वो पूरा अध्याय के अंदर हमारा उद्धार के लिए क्या किराया दे चुका, हमको उद्धार करने के लिए उसको क्या क्या चीजों को सहन करना पड़ा, ये सारी बातों के बारे में यशायाह नबी यहाँ क्या कर रहा है, वर्णन कर रहा है। और इस वचनों को आधार पर रखते हुए नबी ने एक संदेश दिया है, पहचाना गया परमेश्वर का सर्वोत्तम चेतना। तमिल में उसका शीर्षक ऐसा है, अடையாளம் கண்டுகொள்ளப்பட்ட தேவனுடைய சிறந்த வேலைப்பாடு। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, परमेश्वर ने शुरुआत में सारी चीजों को बनाते आया। उसके बाद में 6वां दिन में हम देखते हैं परमेश्वर मनुष्य को बनाया। सही है? हेलो हेलो, सही है? सारा चीज को बनाते आने के बाद यहां इस संदेश के अंदर नबी एक शिल्पकार के बारे में जिक्र करता है। उस शिल्पकार का नाम है माइकल एंजेलो। मूर्तिकार हमेशा अलग अलग मूर्तियों को बनाने वाला। एक बार उसने मूसा का मूर्ति उसने बनाई। काफी समय लगा उसको बनाने में। ऐसा बनाया उसने, उसके माइंड में मूसा का जो भी चित्र था, उस चित्र को उसने अपने कला के जरिए उसने एक स्टैचू बनाया। बनाते उस स्टैचू के साथ में इतना वो मिल गया, क्योंकि उसका विचार में जो था वो अभी उसके सामने क्या है, खड़ा कर दिया। उसने खड़ा करने के बाद वो इतना उत्तेजना हो गया, इतना खुश हो गया, क्योंकि उसके माइंड में जो भी था उसको उसने सामने क्या किया, लेकर आ गया। अब लेकर आने के बाद उसने ऐसा खुशी से उछलकर अपने हाथ में जो हथौड़ी था, जो छीनी था जिससे वो बना रहा है, वो हथौड़ी को उसने क्या किया, उस स्टैचू पे मार कर बोलता है, तू अब मुझसे क्या कर, बातें कर। तू मुझसे अभी क्या कर, बातें कर। देख लेना, उसका विचार के अंदर जो था वो बाहर आ गया, और वो जैसे ब्लूप्रिंट उसके विचार में था, वही चीज रियलिटी में उसके सामने क्या किया, दिखने में आया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों,
जितने भी सृष्टि में चीजों को परमेश्वर ने निर्माण किया, उसमें से सबसे श्रेष्ठ जो है मनुष्य। हालेलुया। उसमें सबसे श्रेष्ठ क्या है? मनुष्य है। क्योंकि मनुष्य को परमेश्वर ने किस रीति से निर्माण किया करके यदि आप देखेंगे, उसने अपने ही रूप में, अपने ही स्वरूप में मनुष्य को क्या किया? परमेश्वर ने निर्माण किया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यदि शास्त्र लेख के अनुसार हम देखेंगे, परमेश्वर की हर कोई बातें दुनिया वाले के नजर में वो हमेशा पागलपन के जैसा दिखने में आता है, और परमेश्वर के लोगों को दुनियावी बातें हमेशा कैसा लगता है? पागलपन लगता है। देख लेना शास्त्र लेख क्या कहता है। पहला कुरिन्थी करास के अंदर आइए, 20 और 25 को पढ़िए, उसमें क्या लिखता है। पहला कुरिन्थी करास उसमें 20 और 25, जिसको भी मिला है वो पढ़ सकते हैं। कहाँ रहा ज्ञानवान, हाँ, कहाँ रहा शास्त्री, कहाँ रहा ज्ञानवान और कहाँ रहा शास्त्री। हाँ, कहाँ रहा इस संसार का विवादी, और कहाँ रहा इस संसार का विवादी। क्या परमेश्वर ने संसार के ज्ञान को मूर्खता नहीं ठहराया? परमेश्वर ने इस संसार के ज्ञान को क्या ठहराया? मूर्खता ठहराया। 1 கொரிந்தியர் 1வது அதிகாரம் 20-25। हाँ, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार, क्योंकि जब परमेश्वर के ज्ञान के अनुसार संसार ने ज्ञान से परमेश्वर को न जाना, संसार ने ज्ञान से किसको नहीं जाना? ये बात को नोट डाउन करना, ज्ञान से कोई भी परमेश्वर को जान नहीं सकता। परमेश्वर को विश्वास करना पड़ता है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। संसार की ज्ञान उसको रख के हम परमेश्वर को कदापि क्या नहीं कर सकते? जान नहीं सकते। परमेश्वर को जानने के लिए हम नहीं आए, परमेश्वर को विश्वास करने के लिए हम आए। आमीन। क्योंकि शास्त्र लेख कहता है, विश्वास करने वालों के लिए सारा चीज साध्य है, असाध्य कुछ भी नहीं। पढ़िए तमिल में। ஞானி எங்கே? हाँ, வேத பாரகன் எங்கே? हाँ, இப்பிரபஞ்ச தர்க்க சாஸ்திரி எங்கே? हाँ, இவ்வுலகத்தின் ஞானத்தை தேவன் பைத்தியமாக்கவில்லையா? हाँ। ये संसार का ज्ञान को परमेश्वर ने क्या कर दिया? पागल बना दिया। हाँ, இந்தபடி हाँ, தேவனுடைய பைத்தியம் हाँ, என்னப்படுவது हाँ, மனுஷருடைய ஞானத்திலும் हाँ, அதிக ஞானமாய் இருக்கிறது. हाँ, தேவனுடைய பலவீனம் என்னப்படுவது हाँ। மனுஷருடைய பலத்திலும் அதிக பலமாய் இருக்கிறது. Amen. 25 वाला। ओके। शास्त्र ले कहता है, संसार का ज्ञान परमेश्वर का खोज नहीं कर सकता। उस सीमा तक आप नजदीक आ सकते हैं, बाद में आपका ज्ञान आपको प्रभु से क्या कर देगा? दूर लेकर चला जाएगा। आदि में उत्पत्ति के अंदर यही बात हुआ, जबकि हमेशा परमेश्वर ने अपना पहला सर्वोत्तम रचना जो आदम को सुरक्षित रहने के लिए कोई चीज दिया है, तो वो कौन सा चीज दिया? आदम सुरक्षित रहने के लिए कोई चीज दिया है, तो वो कौन सा चीज दिया? परमेश्वर का वचन को दिया। किधर सेफ रह सकता है हम? हेलो, किधर सेफ रह सकता है हम? परमेश्वर के वचन में ही हम क्या कर सकते हैं? सेफ रह सकते हैं। परमेश्वर के वचन के थोड़ा भी दाएं या बाएं मुड़ेंगे तो हमारा सेफ्टीनेस क्या हो जाएगा? दूर चला जाएगा। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हवा और आदम ये दोनों को भी एक
शरण स्थान करके या सुरक्षित स्थान करके कुछ चीज को प्रभु ने दिया है, तो परमेश्वर का वचन को दिया है। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन जब उनके आगे था, वचन का कहना वे लोग मान रहे थे, तब तक वहां कुछ भी दुर्विवाह नहीं हुआ। कुछ हुआ? व्यवहार कुछ भी दुर्व्यवहार क्या नहीं हुआ, उधर पूरा नहीं हुआ। जब हवा के मन में यह चीज आई, मैं थोड़ा ज्ञान प्राप्त कर लूं, तो उसके साथ में जब वार्तालाप करने लगी, वही ज्ञान पूरा मानव जाति को किधर लेकर चला गया? पाप के अंदर लेकर चला गया। जबकि मानव जाति परमेश्वर के रूप में क्या किया गया था? सृष्टि किया गया था, बनाया गया था। जब वो लोग गिर गए, परमेश्वर ने ऐसा नहीं सोचा ठीक है आदम और हवा गिर गया, गिरने दो, जाने दो ना। उसके बाद में परमेश्वर वापस अपने बच्चे लोगों को उठाकर खड़ा कर रहा है। किसके साथ में वाचा बांध रहा है? अब्राहम के साथ में वाचा बांध रहा है। जैसे कि हम पिछले हफ्ते में देखे थे 12वां अध्याय के अंदर 1, 2, 3 वचन के अंदर, वहां कोई भी कंडीशन को प्रभु ने नहीं रखा। यहां आदम और हव्वा को रखने के टाइम कंडीशन था, तुम इस फल को खाओगे, उसी दिन में तुम क्या हो जाओगे? मर जाओगे। लेकिन अब्राहम के पास आकर बात करने के टाइम में कोई कंडीशन को प्रभु ने क्या नहीं किया? नहीं किया। तू ये करेगा तो मैं तेरे लिए करूंगा, तू ये करेगा तो मैं तेरे लिए करूंगा, ऐसा करके कोई भी कंडीशन को प्रभु ने क्या नहीं किया? नहीं रखा। बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, अब्राहम के पास आकर बात किया। उसके बाद में हम लोग देखते हैं गोत्र पिता लोग अब्राहम के जरिए आ रहे हैं। उसमें हम देखते हैं इसाक, याकूब, यूसुफ। अब ये एक एक व्यक्ति के साथ में प्रभु इंडिविजुअली क्या किया है? डील किया है। बोलो हालेलुया। आज आपके साथ में भी परमेश्वर इंडिविजुअली डील करना चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति के साथ में वो बोलना चाहता है, प्रत्येक व्यक्ति के साथ में वो बातें करना चाहता है, क्योंकि प्रभु ये चाहते हैं हर एक व्यक्ति मेरे साथ में बने। मेरे साथ में बने रहे बोलने से पास्टर बाबू के साथ में नहीं, प्रभु यीशु मसीह के साथ में बने। हालेलुया, हालेलुया। हम देखते हैं याकूब के बारे में। याकूब एक बहुत बड़ा भरमाने वाला, लेकिन उस बहुत बड़ा भरमाने वाले के जीवन में परमेश्वर आकर उसका नाम को परिवर्तन किया, उसका नाम को चेंज किया। याकूब से उसको क्या बनाया? इज़राइल बनाया। इज़राइल बनाने के बाद, इज़राइल का मतलब क्या है? राजकुमार। इज़राइल का मतलब क्या है? राजकुमार। एक बरमाने वाला, एक झूठा इंसान, उसको उसने अपने हाथों में लिया। अपने हाथों में लेने के बाद उसको क्या बना रहा है? राजकुमार बना रहा है। इसके लिए नया नियम में आपके बारे में, मेरे बारे में बाइबल बात करने के टाइम में बोलता है, तुमको राजा के रूप में और याजक के रूप में प्रभु ने चुना। आप और मैं राजाओं का राजा का बच्चे लोग हैं। राजाओं का राजा कौन है? हमारा प्रभु यीशु मसीह है। प्रभुओं का प्रभु कौन है? वो हमारा प्रभु यीशु मसीह है। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, याकूब के जीवन में जिस खुदा ने बदलावट को लेकर आया, वही खुदा आज हमारे जीवन में भी बदलावट को ला सकता है। सिर्फ क्या चाहिए? सरेंडर लाइफ चाहिए। किसके सामने झुकना है? प्रभु के सामने। प्रभु को कहना है, मेरे लाइफ में मैं परिवर्तन चाहता हूं, मेरे लाइफ में मैं आपके लिए गवाह बनना चाहता हूं। प्रत्येक व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के लिए जिंदा और जीवित क्या करना चाहिए? गवाही बनना चाहिए। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो नबी कहने के समय पर कहता है, याकूब जो है पूरा पूरा परमेश्वर के अनुग्रह से वो संभाला गया है। किसके जरिए? अनुग्रह के जरिए। आज आप और मैं इस स्थान पर बैठे हैं, किसके जरिए? उसके अनुग्रह के जरिए। उसका अनुग्रह नहीं है तो हम कुछ भी नहीं कर सकते।
बोलो हालेलुया। क्योंकि हमारे भले काम से नहीं, हमारे अच्छे कर्मों से नहीं, आज हम लोग जो कुछ भी है उसकी अनुग्रह से हम लोग हैं। आमीन। तो अब्राहम के पास कोई भी कंडीशन को प्रभु ने क्या नहीं किया, नहीं रखा। भाई तू ये करेगा तो मैं तेरे लिए क्या करूंगा, ये चीज करूंगा। नहीं, बिल्कुल नहीं किया परमेश्वर ने। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, यूसुफ के जीवन के अंदर आप देखेंगे, शास्त्र लेख हमें सिखाता है, याकूब यूसुफ से बहुत प्रेम किया। याकूब किससे प्रेम किया? किससे प्रेम किया? और भी 11 बच्चे लोग था, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेम किसके ऊपर था? कभी कभी तुम्हारे घर में भी ये सब वार्तालाप होता रहेगा, नहीं मम्मी तू उससे ही ज्यादा प्रेम करती है। कभी भी देखा तो उसको ही लाड, उसको ही प्यार। 12 बच्चे थे, लेकिन सबसे चाहने वाला कौन था? यूसुफ। इसके लिए उसको बहुरंगी कपड़ा क्या किया? बना कर दिया। और शास्त्र लेख कहता है उसके सारे भाई लोग उसके खिलाफ में क्या हो गए? उड़ गए। कौन लोग? शास्त्र लेख कहता है ना, विरोधी बाहर नहीं है, विरोधी किधर है? विरोधी किधर है? तुम्हारा घर वाला ही तुम्हारा क्या है? विरोधी है। परमेश्वर ने कहा बेटी माँ के साथ में नहीं जमेगा, बहू सास के साथ में नहीं जमेगा। तुम्हारे घर के अंदर ही क्या है? क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि शैतान कभी भी नहीं चाहता आप लोग परिवार के साथ में बैठकर उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, उसकी जय जयकार करें, उसके साथ में बातें करें। इन बातों को शैतान कभी भी क्या नहीं करता, नहीं चाहता। इसके लिए एक का डायरेक्शन वेस्ट में, एक का डायरेक्शन ईस्ट में, एक का डायरेक्शन साउथ में, तो एक का डायरेक्शन हेलो। लेकिन जॉन वेस्ली का माँ उसको 12 के 14 बच्चे, 14 के 17 बच्चे लोग कुछ है, वो उसका माँ हर एक बच्चे के ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करती थी रात को सोने के पहले। अगर 16 भी बच्चा पकड़ लिया तो 12 अपना 16 5 80 15 80 देना है, कितना मिनट? लगभग 1.5 घंटा हर दिन वो अपने हर एक बच्चे लोगों के ऊपर हाथ रखकर क्या कर रही है। तो उस परिवार से प्रभु ने जॉन वेस्ली को उठाकर क्या किया? इस्तेमाल किया। बोलो हालेलुया। घर में माँ बाप जितना भक्ति के अंदर, प्रभु के भय के अंदर, प्रभु का वचन के अनुसार उनका जीवन होगा, वो उसी बातों को वो बच्चे लोग भी क्या कर कर आएंगे? फॉलो कर कर आएंगे। बोलो हालेलुया। बच्चे लोगों के लिए सबसे बेस्ट संडे क्लास अगर टीचर है तो उसकी माँ है। गॉस्पल के बारे में नबी बात करने के टाइम अगर 5वां गॉस्पल कुछ है तो उसका मम्मी है। इसके लिए उनके बच्चों के लिए, जैसे कि मूसा को उसका माँ दूध पिलाने के टाइम, खाना खिलाने के टाइम हर बार वो बोलती रहेगी, बेटा हम जो महल में है ये महल के लोग हमारे नहीं है। बोलो हालेलुया। फिर मूसा पूछेगा, भाई फिर कौन है हमारे लोग? ये लोग हमारे नहीं है तो फिर दूसरा कौन है? तो उसका मम्मी विंडो से दिखा रही है, वो देख वो लोग जो मिट्टी रोल रहा है, जो पसीना बहा रहा है, जो आंख पे कपड़ा नहीं है, तकलीफ है, जो हंटर की मार खा रहा है, वो लोग अपना। हालेलुया। और हम लोग जब प्रार्थना कर रहे थे, इनको हमारे लोगों को छुड़ाने के लिए एक छुड़ाने वाला चाहिए, तब परमेश्वर ने हमारा प्रार्थना को सुना और तुझे हमें दिया। तो इसलिए ये हमारा नहीं है, वो हमारा है। बोलो हालेलुया। ये लोग हमारे लोग नहीं है, वो लोग हमारे लोग हैं। परमेश्वर यीशु मसीह इस दुनिया में आया, कोई राजमहल में जाकर प्रचार नहीं किया, कंगालों के बीच में जाकर प्रचार। सही है? किधर जाकर प्रीच किया? कंगालों के बीच में। शास्त्र ले कहता है अंधियारे के अंदर जो रहने वाले लोग बड़ा उजियाला को क्या कर पाए? देख पाए। हालेलुया।
जब आदम के अंदर से हवा को प्रभु ने क्या किया, बाहर निकाला, वैसे ही हमको भी परमेश्वर के अंदर से प्रभु ने क्या किया, बाहर निकाला। हम इस संसार के नहीं हैं, हम इस संसार के नहीं है। नबी उसके औरत के साथ में बात करने के टाइम उसका औरत बोलती है हमारे अमेरिका के लोगों को क्या हो गया, तो नबी बोलता मैं अमेरिकन नहीं हूं, मैं किधर का हूं, किधर का हूं, हम ये संसार के अंदर परदेसी है। ये संसार के अंदर हम लोग कौन है, परदेसी है। तो एक परदेसी का जिंदगी कैसा होगा जरा सोच कर देख लेना। आज इधर टेंट डाला, दूसरे दिन में दूसरा जगह में टेंट डाला, ऐसे ही उसकी जिंदगी क्या रहती है, चलते रहती है। हमारा खुदा भी टेंट के अंदर आया, टेंट के अंदर आते आते बाद में खुद शरीर में होकर क्या किया, इस दुनिया में आया। फिर अब वो किधर आना चाहता है, आपके अंदर मेरे अंदर आना चाहता है। तो आज हमारे अंदर क्या दिखने में आना चाहिए, परमेश्वर का लिखा हुआ शब्द हमारे अंदर क्या करना चाहिए, दिखने में आना चाहिए। बोलो हालेलुया। जब यूसुफ के जीवन में तकलीफ आई, उसके भाई लोगों ने उठाकर उसको किधर डाल दिया, खड्डे में डाल दिया। पढ़िए उत्पत्ति का किताब 37 चैप्टर, उसमें 4 और 24 को पढ़िए। அவனுடைய சகோதரர் हाँ எல்லாரிலும் அவனை हाँ தங்கள் தகப்பன் அதிகமாய் நேசிக்கிறதை அவன் சகோதரர் கண்டபோது हाँ அவனோடு பட்சமாய் பேசாமல் हाँ அவனை பகைத்தார்கள்। उसको वो लोग क्या करने लगे, बैर करने लगे। उसका पक्ष में वो लोग बात नहीं किया, यूसुफ के विरोध में क्या किया वो लोग। हेलो, शास्त्र में कहता है पिता ने जगत से इतना प्रेम किया, उसने अपना एकलौता एक पुत्र को क्या कर दिया, ये जगत में भेज दिया, ताकि कोई भी नाश ना हो, हर एक व्यक्ति क्या पाए, अनंत जीवन पाए। पिता का प्रेम किसके ऊपर था, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर। इसके वजह से शास्त्र में कहता है वो अपने ही लोगों के बीच में आया और अपने लोगों ने उसको क्या नहीं किया, स्वीकार नहीं किया। यहाँ उसका ही लोग, यूसुफ का ही भाई लोग उसको क्या करने लगे, बैर करने लगे। आज वचन के खातिर लोग आपसे भी बैर करेंगे। आप थोड़ा वचन के हिसाब से चलने के लिए कोशिश करो, वचन को अपने जीवन में अमल करना स्टार्ट करो। हर एक व्यक्ति तुम्हारे खिलाफ में उठते हुए आप देख सकते हैं। एक अच्छा ईमानदार काम करने वाला, जैसे शास्त्र लेख में कहता है, तो हम जहां भी काम करेंगे वहां नेकी और ईमानदारी से काम करेंगे। ये वचन को आप पूरा करके देखो। उधर आप किसी के भी जीवन में किसी के भी खिलाफ कुछ किए नहीं रहेंगे, लेकिन ऑटोमेटिकली तुम्हारे विरोध में दुश्मन लोग वहां क्या हो जाएगा, खड़ा हो जाएगा। लो, लेकिन हमको वचन पूरा करना है। हमको क्या करना है, कोई हमसे बैर करे या दुश्मनी या कुछ भी करे, हमको प्रभु का वचन को क्या करना है, पूरा करना है। अपना ही भाई लोगों ने बैर किया। हाँ नीचे 24 அவனை எடுத்து हाँ அந்த குழியிலே போட்டார்கள்। उसको उठाकर देख लेना, वो लोग खत्म करने के प्लान में था। रूबन वहां बीच में आ गया। रूबन बीच में आकर बोला भाई वो भी अपना ही भाई है, उसको क्या मत करो, खत्म मत करो। आप देख सकते हैं यीशु मसीह को सलीब पर चढ़ाने के पहले बोलता यार ये मरण का योग्य कुछ पाप किया ही नहीं, इसको मरण का दंड देने का कोई आवश्यकता आई नहीं है। पिलातुस ने सबके सामने अपने हाथ को क्या कर दिया, धो दिया, इसका लहू का बदला हमारे साथ में ना हो, क्योंकि उसके अंदर कोई दोष नहीं था, वो निर्दोष मेमना था। जैसा रूबन ने यहाँ यूसुफ को बचाने के लिए कोशिश की, वैसा वहां भी प्रभु को बचाने के लिए बहुत कोशिशें हुई, लेकिन नहीं। प्रभु यीशु मसीह ये संसार में वचन को पूरा करने के लिए, ऐसा 53वां अध्याय के अंदर शास्त्र में कहता है हम लोग देखने लायक रूप उसके अंदर नहीं था।
ऐसा ऐसा रूप नहीं था। हम लोग देखने लायक रूप उसके अंदर नहीं था। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आपको और मेरे को बचाने के लिए वो खुदा ने अपना रूप को खोया। अपना रूप को क्या किया? तो वो खोया हुआ रूप अभी किधर दिखने में आना चाहिए? उसके दुल्हन के अंदर दिखने में आना चाहिए। इसके अंदर, उसके दुल्हन के अंदर वो रूप को इसलिए खोया ताकि वो रूप उसके दुल्हन में क्या कर सके? दिखने में आ सके। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, हमारा खुदा आज भी जिंदा है। आज भी वो कैसा है? जीवित है। आदम परमेश्वर का वचन के पीछे जब तक था वो सुरक्षित था। आज दुल्हन जब तक उसके वचन के आड़ में रहेगा तब तक वो सुरक्षित है। देखो, आशीष इजरायली लोगों को बाहर किधर भी आशीष नहीं है। उनका खुद का देश में ही आशीष है। उनका प्रतिज्ञा किया गया देश में ही उन्हें क्या है? आशीष है। आज दुल्हन का प्रतिज्ञा किया गया देश क्या है? दुल्हन का प्रतिज्ञा किया गया वो वतन किधर है? वो पवित्र आत्मा है। लो, वो उसका पवित्र वचन है। आपको आशीष बाहर से नहीं मिलेगा, आशीष यहां से मिलेगा। सारा आशीष, स्वर्गीय आशीष और पृथ्वी के आशीष, सारी बातें किधर से मिलेगी आपको? आपका स्वदेश किधर है? ये बाइबल है, ये वचन है, इस समय का संदेश है। इस समय का संदेश ही तुम्हारा क्या है? स्वदेश है। हमारा स्वदेश किधर है? स्वर्ग में है। ये वचन, ये संदेश आपको किधर लेकर जाएगा? स्वर्ग में लेकर जाएगा। हालेलुया। तो ये मैसेज में ऐसा जिक्र करता है, भाई ब्रैनम बोलता है पहला मसीह आया उसका दुल्हन को उद्धार करने के लिए, अब सेकंड वो आने वाला है उसको लेकर जाने। तो अब समय बहुत निकट है। कभी भी प्रभु का क्या हो सकता है? आगमन हो सकता है। अब देख लेना, पहला उसका रचना बहुत ही सुंदर था क्योंकि वो परमेश्वर का बेटा था। लूक 3 अध्याय 38वां वचन को यदि आप देखेंगे, ये आदम जो है वो परमेश्वर का कौन है? वो बेटा है। अब परमेश्वर का बेटे को किधर रखा? वचन के पीछे रखा। भाई तू वचन के पीछे रहेगा, तेरे आगे वचन रहेगा तो हमेशा कैसा रहेगा? सुरक्षित रहेगा। नबी एक संदेश में कहने के समय पर कहता, आज बहुत सारे देश बंकर बना रही है। बम गिरे तो हम लोग जाकर किधर छुप जाएंगे? वो बंकर के नीचे जाकर छुप जाएंगे ताकि वो बम का हमला हमारे ऊपर ना हो जाए। नबी कहता है वो बंकर आपको बचा नहीं सकता। अगर आप बचने के लिए एक सुरक्षित जगह है तो वो परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। आप बचने के लिए एक सुरक्षित जगह है तो वो क्या है? परमेश्वर का वचन है। इसलिए परमेश्वर का कलाम कहता है वो दोधारी तलवार है, वो डाल है, वो चट्टान है। आमीन। धर्मी जन जाकर उस पे क्या करेगा? बोलता सुकून से रहेगा। ये यशायाह 53वां अध्याय में बोलता है बहुतों को क्या करेगा? वो धर्मी बनाएगा, सबको नहीं। हेलो, क्या बोलता है? अनेकरे ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲ, बहुतों को नहीं, अपना सभी लोगों को नहीं, बहुतों को। मतलब इस दुनिया के बुनियाद डालने से पहले, जैसे रेवलेशन 13:8 कहता है, रेवलेशन 13:8, உலக தோற்றம் முதல் அடிக்கப்பட்ட ஆட்டுக்குட்டியினுடைய ஜீவ புஸ்தகத்தில் பெயர் எழுதப்பட்டிராத பூமியின் குடிகள் யாவரும் அதை வணங்குவார்கள்। संसार उत्पन्न होने के पहले, पढ़ो बेटा, पृथ्वी के सब रहने वाले, पृथ्वी के सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए। एक गाना है, नबी उल्लेख करने के टाइम में बोलता वो गाना, ऐसे लोग गा रहे कि यूहन्ना उस पुस्तक को देखने के समय में मेरा नाम वो पुस्तक में है क्या? यूहन्ना उस पुस्तक को देखने के समय में मेरा नाम उसके अंदर
कितने लोग विश्वास करते हैं आपका नाम उस पुस्तक में है? हालेलुया। आपका नाम उस पुस्तक में है, मेरा नाम उस पुस्तक में है। यूहन्ना पहला रो रहा था जब वो पुस्तक खुली, जब अपना नाम को उसने वहां देखा, खुद का नाम को, तो उसका रोना आनंद में बदल गया। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो वो जानवर को कौन लोग नमन करेंगे जिसका नाम दुनिया के बुनियाद डालने से पहले उस किताब में नाम जिनका नहीं है, वो लोग उस जानवर और उस जानवर के स्वरूप के पीछे जाएंगे। सबको पता है, बहुत लोग बहुत डायग्राम लेके बता रहा है, मैं सिंपल रीति से बताकर जा रहा हूँ। आप कितना भी फोटो देख लो, कितना भी डायग्राम देख लो, शुरुआत में जो सर्प निकला वही सर्प अलग अलग रोल में मॉडिफिकेशन करते करते आखिर में यूदास के अंदर आया। यूदास से अभी लास्ट में किसके अंदर आकर बैठने वाला है? वो पोप के अंदर आकर बैठने वाला है। जैसा यीशु मसीह अपना रंग रूप को चेंज करते आ रहा, वैसा शैतान भी अपना नकाब को क्या कर रहा है? चेंज कर आ रहा है। नबी बोलता है कि WCC, जब सब लोग साथ में मिलने का समय आएगा, लेकिन दुल्हन उन लोगों के साथ में कभी नहीं मिलेगा। हेलो, क्योंकि दुल्हन का गर्दन भी काटा जाएगा ना, वो त्रिएकता के आगे जाएगी नहीं, क्योंकि उसको मालूम है उसका दूल्हा 3 नहीं है, उसका दूल्हा एक ही है। हालेलुया, हालेलुया। तो उसका दूल्हा एक है, तो उसका दूल्हा क्या है? उसका दूल्हा वचन है। उसका दूल्हा कौन है? उसका दूल्हा वचन है। बहुत लोग बोलते हैं कि हमको दूध मांस क्या है? परमेश्वर का वचन ही तो है, क्या अलग कुछ है? ज्ञान का दूध याकूब लिखने के टाइम में बोलता है ये ज्ञान का दूध है, और यूहन्ना लिखने के टाइम पर लिखता है आपके लिए मार कायला मेमना के रूप में उधर परमेश्वर क्या है? वेदी के सामने खड़ा है। अब ये दोनों भी चीज क्या है? परमेश्वर का वचन है। यही वचन तुम्हारे लिए मांस है। वो वचन ही देहधारी होकर, क्या आप लोग मेरे साथ हैं? क्या बनकर आया? वचन क्या बनकर आया? देहधारी बनकर आया। तभी चल के वो बोला ना, मेरा मांस खाकर देखो उसके अंदर क्या है? जीवन है। मेरा लहू पीकर देखो उसके अंदर क्या है? जीवन है। मांस क्या है? प्रभु का वचन। इस वचन को तुम जितना खाओगे, मांस भी यही है, रोटी भी यही है, मद भी यही है। आप बाइबल के अंदर वर्ड्स को चेक करो, मद भी यही है, तेल भी यही है, पानी भी यही है। तुम्हारे आत्मिक जीवन के लिए जो जो चीजें आवश्यकता है, वो सारी चीज ये वचन ही है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, और लोग उस वचन के आड़ में रहना पसंद नहीं किया, वचन से क्या हो गए? दूर चले गए। एक बार एक इंसान अगर वचन से दूर होता है, वो परमेश्वर से दूर होता है। देखो, संगति से वंचित होना मरने का समान, मैं तो बोलूंगा। कैसे? शारीरिक प्रकार का मरण नहीं, आत्मिक प्रकार का मरण के बारे में बात कर रहा हूं। संगति से वंचित रहना क्या है? आत्मिक प्रकार का क्या है? वो मरण है। इसलिए पौलुस इब्रानियों का किताब 10:25 में लिखने के टाइम में बोलता है, कितने लोगों ने संगति को छोड़ दिया, लेकिन तुम लोग संगति को मत छोड़ना। कलीसिया एकत्रित होने को तुम लोग क्या नहीं करना? मत छोड़ना। क्योंकि कलीसिया एकत्रित होना क्या है? परमेश्वर का अवयव, परमेश्वर का शरीर एक साथ में क्या करना? आना। आपका जगत में एफेसियन चर्च से लेकर लवोदिशियन चर्च के अंदर जितने भी लोग उस समय में जो प्रकाशन उनको मिला है, उस प्रकाशन के लिए जो लोग उत्तम से जीवन व्यतीत किया, उसको अपने जीवन में स्वीकार किया, वो लोग ब्राइड का लिस्ट में आते। हेलो, हर कलर के लोग दिखेंगे वहां, हर कलर के लोग, हर भाषा के लोग क्या करेंगे? दिखेंगे। नबी तो कुछ दर्शन देखने के टाइम में रैप्चर में जाने वाले लोग, बहुत सारा लोग, धोती वाले लोग दिखा, वो लोग दिखा, बहुत सारा धोती किधर का श्रेष्ठ है? भारत का श्रेष्ठ है ना। धोती किधर का श्रेष्ठ है?
भारत का श्रेष्ठ है। इसका मतलब भारत के अंदर से भी काफी लोग क्या कर रहा है, उठाए ले जाने में जा रहा है। तो आज हमारा विश्वास ये होना चाहिए, वो गैंग के अंदर मैं भी होना चाहिए। हेलो, वो ग्रुप के अंदर, वो झुंड के अंदर क्या है, मैं भी क्या करना चाहिए, होना चाहिए। कोई एक आदमी का ही चर्च, पर्टिकुलर चर्च ही रैप्चर में जाने वाला नहीं है। परमेश्वर के अंदर प्रिय लोगों, आपका जगत के अंदर से प्रभु अपने लोगों को चुनकर ले रहा है। किधर से? हेलो, पूरा दुनिया से। क्योंकि पर्टिकुलर देश के लिए या पर्टिकुलर राज्य के लिए या पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए प्रभु मारा नहीं गया, आपका जगत के लिए मारा गया। बोलो हालेलुया। तो आपका जगत के अंदर से प्रभु का शरीर क्या हो रहा है, तैयार हो रहा है। जो पहला सर्वोत्तम रचना जो आदम था, उसको वो शैतान ने क्या कर दिया, गिरा दिया। उसके बाद में अब्राहम के जरिए एक वंश आ रहा है, और उस वंश के बारे में गलातियों में लिखने के टाइम पर पौलुस इस रीति से लिखता है, वो वंश जो है मसीह है। वो वंश कौन है? वो वंश कौन है? मसीह है। बोलो हालेलुया। प्रतिज्ञा किया गया संतान आइजक था, लेकिन यहां गलाती में बात करने के टाइम में पौलुस इस रीति से बोलता है, वो वंश कौन है? मसीह स्वयं है। यदि मसीह है स्वयं, तो हम लोग भी अब्राहम के जरिए मसीह के अंदर, हम लोग भी किसका है? हेलो, किसका है? मसीह का है। आइए पढ़िए, 3 अध्याय 16वां वचन, गलाती 3:16। ஆபிரகாமுக்கு அவருடைய சந்ததிக்கு வாக்குத்தத்தங்கள் பண்ணப்பட்டன, சந்ததிகளுக்கு என்று அநேகரை குறித்து சொல்லாமல், बहुतों के बारे में नहीं बताया इधर, उन संतति என்று ஒருவனை குறித்து சொல்லி இருக்கிறார்। तेरा संतान करके कितने के बारे में लिखा है? एक के बारे में लिखा है। और वो एक कौन है? क्रिस्तु, मसीह। हाँ, पढ़ो महिंदी। अतः प्रतिज्ञा अब्राहम को और उसके वंश को दी गई। वो यह नहीं कहता वंशों को, जैसे बहुतों के विषय में कहा, पर जैसे एक के विषय में की, तेरे वंश को, और वह मसीह है। तेरे वंश को करके बात कर रहा है, वंशों करके नहीं बात कर रहा है। और वो वंश कौन है? मसीह है। अब पिता परमेश्वर का सेकंड सर्वोत्तम रचना कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। अब प्रभु यीशु मसीह, जैसे आप और मैं पैदा हुआ उस रीति से पैदा नहीं हुआ। हम लोग अपने माता पिता की इच्छा पूर्ण होने से पैदा हुए, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का पैदाइश ऐसा नहीं है। इसके लिए जन्म से कोई भी व्यक्ति धर्मी नहीं है। जन्म से धर्मी सिर्फ एक ही है, वो है प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। जन्म से धर्मी व्यक्ति केवल और केवल कौन है? प्रभु यीशु मसीह। क्योंकि उसके बारे में शास्त्र लेख में कहता है, वो संसार में प्रवेश करने के समय में अपने लिए एक शरीर को उसने क्या किया? तैयार करके लिया। वो अपना शब्दों से शरीर को क्या किया? निर्माण किया। जैसे मरियम ने बोला, मैं तो पुरुष को नहीं जानती हूँ, लेकिन तेरे वचन के अनुसार क्या करने दे, होने दे। तो वो वचन मरियम के कोख में अंदर गया, वो एक शरीर को क्या किया? तैयार किया। यीशु मसीह जन्म से ही पवित्र है। आप और मैं पवित्र किए गए हैं। हम जन्म से पवित्र नहीं है, आप और मैं क्या किए गए? पवित्र किए गए। जब यीशु मसीह इस दुनिया में आकर अपने सेवकाई के अंदर बड़े बड़े चमत्कार, सारे चीजों को करते 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 आया, परमेश्वर ऊपर से देखा, मेरा ये बनाया हुआ रचना बहुत ही सुंदर है। क्योंकि शास्त्र ले कहता है, हमारा परमेश्वर वो 10,000 में श्रेष्ठ है। 1000 10,000 பேர்களில் எப்படிப்பட்டவர்? அவரு சிறந்தவர்। हालेलुया। 10,000 में श्रेष्ठ है। उस व्यक्ति के बारे में यशायाह नबी कहता है, हम लोग देखने लायक रूप
या सुंदरता उसके अंदर नहीं था। उसने अपना सुंदरता को किसके लिए खोया? आपके लिए, मेरे लिए खोया, ताकि आपका स्वभाव सुंदर बने, आपका जिंदगी सुंदर बने, आपका चरित्र क्या बने? वो सुंदर बने। जिसके जीवन में मसीह आता है उसके जीवन में 101% परिवर्तन होता है। हेलो, अगर मैं पहला 91 के पहले शराब पीने वाला था, अभी भी मैं शराब पीता हूं, तो क्या परिवर्तन? कोई परिवर्तन नहीं। लेकिन जब 91 में हमने मसीह को स्वीकार कर लिया, मसीह ने हमारे जीवन के अंदर क्या किया? परिवर्तन किया। हमारे अंदर, मेरे अंदर जो जान पर बैठकर शराब पी रहा था उसको बाहर किया, वो अंदर आ गया। बोलो हालेलुया। आज बहुत सारे परिवार में हम लोग दुखित है, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, ये प्रॉपर नहीं, वो प्रॉपर नहीं, सब प्रॉपर होगा। अपने जीवन को प्रभु के हाथ में हवाले करो। तुम कोशिश करके थक गया ना, छोड़ दो। अब विश्वास के ऊपर जोर लगा कर देखो, नहीं प्रभु मैं थक गया, मैं थक गई, इसके आगे मेरे से कुछ नहीं होगा, तू कुछ कर। हालेलुया। देखो, किसी भी व्यक्ति को ना मैं बचा सकता, ना आप बचा सकते। किसी भी व्यक्ति को ना मैं स्वर्ग में ले जा सकता, ना आप स्वर्ग में ले जा सकते। ये बात को अच्छे से लिख कर रख लेना। किसी भी व्यक्ति को ना मैं स्वर्ग ले जा सकता, ना आप स्वर्ग ले जा सकते। किसी भी व्यक्ति के अंदर एक निश्चितपना नहीं आता, नहीं मसीह मरा मेरे लिए, हाँ मसीह गाड़ा गया मेरे लिए, मसीह फिर से जी उठा मेरे लिए। ये बात का महसूस जब इंडिविजुअल के अंदर आता है तब चलते परिवर्तन होता है। मसीह का प्रेम को अनुभव में लेना पड़ता है। मसीह का प्रेम को क्या करना पड़ता है? अनुभव में लेना पड़ता है। इसके लिए दाऊद नबी बोला, यहोवा कितना मेहरबान है, चख कर दे। तो दुल्हन जो होगी, हर एक व्यक्ति अपने जीवन में मसीह को अच्छे से चखा हुआ होगा। आमीन। एक बार इसका स्वाद लग गया ना, उसको इस दुनिया का कोई भी चीज में मन नहीं लगेगा। हालेलुया। एक टाइम पे ऐसा था, अंबरनाथ के अंदर 2 थिएटर थी, एक लक्ष्मी थिएटर था, एक वंदना थिएटर। 6 से 9 वंदना में पिक्चर देखने का, वैसे चलते चलते रास्ते में लक्ष्मी थिएटर, 9 से 12 लक्ष्मी में पिक्चर देखने का, उसके बाद में 12 बजे जाके घर में सोने। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मसीह के अंदर आया, मसीह को जब चखने लगा, फालतू में हमने जिंदगी में क्या कर दिया? बहुत सारे समय को बर्बाद कर दिए। बोलो हालेलुया। ये कब आएगा? इंडिविजुअल उसको चखने लगेगा तब चलकर आएगा। इसके लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं। मैं जब वचन को सुना, समझा, मेरा औरत को बुला रहे, चल बैप्टिज्म लेने के लिए जाने का क्या है? भूत था, भूत भाग गया, लड़का चाहिए था, लड़का मिल गया, अभी काय का बपतिस्मा? लेकिन मैं बोला ठीक है भाई, तुझे नहीं लेना है मत ले, मैं तेरे साथ जबरदस्ती नहीं करूंगा, लेकिन मैं जाऊंगा। मैं क्या करूंगा? जाऊंगा। जब मैंने बैग बिग भर के लेके गया, वो बपतिस्मा का प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि प्रभु के योजना में था मैं अकेला लेना नहीं है, उसको भी साथ में लेके लेना। हालेलुया। तो हम किसी को भी जोर जबरदस्ती करके मसीहत के अंदर या मसीहत की राज्य में क्या नहीं कर सकते, लेकर जा नहीं सकते। हर एक का हृदय को प्रभु टच करना चाहिए। प्रभु की आत्मा की उपस्थिति जब आता है ना, शास्त्र लेख में हम लोग देखते हैं, प्रभु जो चट्टान पर उतरे, वो चट्टान खड़क गए, वो चट्टानें क्या हो गई? हिल गई। तो ये इंसान का हृदय कितना है? मामूली सा। थोड़ा प्रभु स्पर्श कर दिया ना, वो ऑटोमेटिकली रोने लगेगा और कहने लगेगा, हाँ प्रभु मैं पापी। मैं कौन हूँ? मैं पापी हूँ।
मुझ पर रहम कर, तुम सिखाने की जरूरत नहीं, वो ऑटोमेटिकली कहना चालू कर देगा, यस प्रभु मैं पापी हूं, यस प्रभु मैं पापी हूं, मुझे छू ले। कितने लोगों का गवाही आप लोग सुने रहेंगे, ऐसा अब मैं गया था, प्रभु ने मुझे स्पर्श किया, मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं रोते रहा, सारे पापों को कन्फेस करते रहा। बोलो हालेलुया। तो हमारे घर परिवार में परमेश्वर को कार्य करने के लिए हालेलुया। तो सेकंड सर्वोत्तम रचना जो प्रभु यीशु मसीह है। अब यीशु मसीह के बारे में यहां शास्त्र लेख में लिखता है, आइए मत्ती का किताब 17वां अध्याय में है। सत्रह में हाँ 5 पढ़ना। वह बोल ही रहा था, वो बोल ही रहा था कि एक उजले बादल ने उन्हें छा लिया। एक काला बादल नहीं, कौन सा बादल छा लिया उसको? उजले बादल ने उसको छा लिया, और उस बादल में से यह शब्द निकलता, और वो बादल में से एक शब्द निकला, यह मेरा प्रिय पुत्र है। ये कौन है? मेरा प्रिय पुत्र। क्यों ये शब्द आया? हाँ, ये शब्द आने का कारण क्या है? ये मेरा कौन है? प्रिय पुत्र। आज परमेश्वर की ओर से हमारे विषय में भी आवाज आना चाहिए। लो, ये मेरा प्रिय बेटी है, ये मेरा प्रिय बेटा है, ये मेरा कलाम को छोड़कर दूसरा कोई चीजों में क्या नहीं करता, अपने आप को मिंगल नहीं करता। बोलो हालेलुया, हालेलुया। ये मेरा कौन है? प्रिय पुत्र। क्योंकि हर एक जगह में यीशु मसीह पिता परमेश्वर के बारे में क्या क्या बोलकर जा रहे। देखिए यूहन्ना का किताब 10वां अध्याय 37 और 38 को पढ़िए। என் பிதாவின் கிரியைகளை நான் செய்யாதிருந்தால், इसका क्रिया को मैं नहीं करेगा तो, नहीं किया होगा तो, किसका क्रिया? मेरा पिता का क्रिया। पिता कौन? परमेश्वर। परमेश्वर कौन? वचन। वचन क्या है? आत्मा है। उसका वचन आत्मा और जीवन है। परमेश्वर कहता है, मैं यदि मेरा पिता का क्रिया को अगर नहीं किया होता, हाँ, நீங்கள் என்னை விசுவாசிக்க வேண்டியதில்லை। तुम लोग मुझे विश्वास करने का क्या नहीं है? जरूरत नहीं है। हाँ, செய்தேனேயானால், अगर यदि मैं किया, நீங்கள் என்னை விசுவாசியாதிருந்தாலும், अगर मैं किया और तुम लोग विश्वास ना किए, பிதா என்னிலும் पिता मुझ में, நான் அவரிலும் இருக்கிறதை நீங்கள் அறிந்து, मैं उसमें है, उसको तुम लोग जानकर, प्रियो, आज के दिन में आप मसीह में और मसीह आपके अंदर रहने का ये सीन को लोग क्या करना चाहिए? देखना चाहिए। बोलो हालेलुया। यीशु कहते हैं, पिता मुझ में और मैं किसके अंदर? पिता में। आज क्या होना चाहिए? दुल्हन के विषय में ऐसा गवाही होना चाहिए, वचन दुल्हन के अंदर और दुल्हन वचन के अंदर। आमीन। क्योंकि वचन कहता है, हम किधर भी मुड़ने के समय में आवाज आता है, दाएं ना बाएं मुड़ना, आगे ही आगे बढ़ना। किधर बढ़ना? क्रूस पर मरा हुआ यीशु को देखकर बढ़ना। बोलो हालेलुया। हाँ, हिंदी में पढ़ना बेटा। यदि मैं अपने पिता के काम नहीं करता, यदि मैं अपने पिता की काम नहीं करता, तो मेरे विश्वास न करो। मेरा क्या मत करो? विश्वास ना करो। परंतु यदि मैं करता हूँ, यदि मैं करता हूँ, तो चाहे मेरा विश्वास न भी करो,
चाहे मेरा विश्वास ना भी करो। परंतु उन कामों का तो विश्वास करो, किसका विश्वास करो? उन कामों का तो विश्वास करो ताकि तुम जानो और समझो ताकि तुम जानो और क्या करो? समझो। जानना भी जरूरी है और समझना भी क्या है? जरूरी है। हाँ, कि पिता मुझ में है। पिता किधर है? मुझ में है। पिता कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर किसके अंदर? यीशु के अंदर। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर को देखना चाहता है, कोई व्यक्ति पिता को देखना चाहता है, तो वो किसको देखे? यीशु को देखे। आज कोई व्यक्ति यीशु को देखना चाहे तो वो किसको देखे? उसका दुल्हन को देखे। तो उसका दुल्हन अपने आप को उस वचन के अंदर क्या करना चाहिए? सिमट लेना चाहिए। वचन के बाहर कुछ नहीं। हेलो, ये सब बातें करने के टाइम में उन लोगों को गुस्सा आया और क्या कहने लगा मालूम है? तू तो मनुष्य है। तू कौन है? 33 पढ़ो उसमें, 10 में 33। यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया, भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, भले काम के लिए तुझ पर हम लोग क्या नहीं कर रहे? पथरवाह नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण। किसका निंदा करने के कारण? क्या बोला वो? परमेश्वर किधर है? पिता किधर है? मुझ में है। ये शब्द उन लोगों को कैसा लगा? गलत लगा। वो पक्षघाती मनुष्य को बोला ना, तेरा काट उठाकर चल, ये कहना अच्छा है या तेरा पाप क्षमा हो गया ये कहना अच्छा है? तो सदुकी फरीसी लोग जो बैठे थे, ये कौन होता है पाप क्षमा करने वाला? उनके मन में क्या था? ये कौन होता है पापों को क्षमा करने वाला? जिनके इंतजार में वो लोग बैठे थे, वही उनके बीच में आकर बात कर रहा है, लेकिन उन लोग उसको क्या नहीं किया? पहचाना नहीं है। बोलो हालेलुया। तब परमेश्वर बोलता है, मनुष्य का पुत्र को पापों के क्षमा करने का क्या दिया गया है? अधिकार दिया गया है। हालेलुया। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने शिष्यों को बोलने के टाइम पर बोला, तुम जिनका पाप क्षमा करेगा उनका पाप क्षमा हो जाएगा। तुम इस पृथ्वी पर जो बांधोगे वो स्वर्ग में भी क्या किया जाएगा? बांधा जाएगा। तुम इस पृथ्वी पर जो खोलोगे वो स्वर्ग पर भी क्या किया जाएगा? खोला जाएगा। हालेलुया। तो सेकंड सर्वोत्तम रचना उत्पत्ति से लेकर मलाकी तक जो भविष्यवाणियां हुई थी, वो है प्रभु यीशु मसीह। अब तीसरा सर्वोत्तम रचना कौन है? आप और मैं। तीसरा सर्वोत्तम रचना क्या है? आप और मैं है। तो अभी आपके अंदर कौन दिखना चाहिए? मसीह दिखना चाहिए। यीशु के अंदर कौन दिखा? पिता दिखा। आज दुल्हन के अंदर कौन दिखना चाहिए? प्रभु यीशु मसीह दिखना चाहिए। इसलिए जैसे आदम को गहरा नींद में ले जाकर फसली को निकालकर हवा बनाया, वैसे ही यूहन्ना 19वां अध्याय के अंदर जब यीशु मसीह सलीब पर गहरे नींद में थे, वो सोल्जर आकर बाला मारा, अंदर से लहू निकला और पानी। अंदर से क्या निकला? लहू और पानी। नबी पहले के समय पर कहता है, सेकंड आदम के लिए सेकंड हवा उधर से ही वो बाहर। हालेलुया। आप और मैं जिधर से बाहर आए वहां ही वापस जाना। एक तो बोला, यार मैं बूढ़ा हो गया, मैं क्या वापस मेरा माँ के पेट के अंदर जा सकता है क्या? तू नहीं जा सकता तेरा माँ के पेट के अंदर, लेकिन हम जा सकते हैं मसीह के अंदर। आमीन। क्योंकि हम कहां से आए? मसीह के अंदर से। तीसरा सर्वोत्तम रचना, जैसा वहां माइकल एंजेलो उस पुतला को मारकर बोला, मेरे से क्या कर? बातें कर। यहाँ रूपांतर पहाड़ में यीशु मसीह के विषय में क्या कर रहा है? पिता वहां आवाज क्या दे रहा है? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। नबी बोलता है, यीशु मसीह के अंदर सुंदरता आया बोलने से कभी, जब पिता परमेश्वर ने उसको सलीब पर मारा। किसके लिए मारा? आपके लिए मारा, मेरे लिए मारा। शास्त्र ले कहता है, उसने अपने प्राण को उंडेल दिया। तरुणीय
ஆத்மாவை என்ன செஞ்சாராம் அவரு மரணத்தில் ஊற்றி क्यों पाप करने वाला प्राण क्या करेगा मरेगा इसलिए उसने अपना प्राण को दोष निवारण बलि के रूप में क्या किया उंडेल दिया उसके खातिर आज आप और मैं क्या हो गए बच गए शास्त्र लेख में यदि आप देखेंगे उत्पत्ति का किताब 5वां अध्याय में सेत के बारे में लिखने के टाइम परमेश्वर का कलाम कहता है जब आदम 130 वर्ष का हो गया तो उसके ही समान एक पुत्र को क्या किया पैदा किया डिक्टो आदम डिक्टो आदम तो आप देख सकते हैं कभी कभी रिश्तेदारी में कुछ डिलीवरी वगैरह हो गया तो देखने के लिए जाते हैं अस्पताल में बुढ़ी सुड्ढी जवान सब जाता है उधर देखने के लिए फिर उसमें कोई बुढ़ी बोलेगा ये लड़का का नाक उसका बाप का जैसा ही ये लड़का का आंख उसका बाप का जैसा ही है डिक्टो उसका बाप ही क्या होकर आ गया है पैदा होकर आ गया आज ये दुनिया में लोग आपको और मेरे को देखने के समय पर बोलना चाहिए ये डिक्टो मसीह के जैसे इसका कार्य हर कार्य मसीह का वचन के अनुसार है तो इसलिए मसीह के अंदर प्रिय भाई और बहनों ये वचन को पढ़कर कोई यीशु को जानता है उसमें कोई बड़ी बात नहीं ये वचन में यीशु ही हीरो है आज आप और मैं लिखा हुआ पत्री ये करके कोरिन्थियन में लिखने के टाइम पौलुस लिखता है आज आपको और मेरे को पढ़कर लोग मसीह के पास प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को आशीष करे तो आइए हम लोग सब उठकर खड़े हो जाएंगे एक गीत गाएंगे उस समय में हम लोग परमेश्वर के लिए दान देंगे ये नरे पावे